Morning, ladies and gentlemen. Sunday mornings are tough, so I appreciate your coming out here to listen to our favorite newscasters. I'm a huge fan of television news. In fact, I started my career in television news when it was state broadcasting, and there was only one newscast every day at 9 o'clock in the evening. I used to carry a huge camera on my shoulder and run around, and the recording machine was on another person's shoulder. And we did very difficult news at that time because Doordarshan was the only place you could play those news clippings. We have come a long way. This morning, we have heard two very strong political people talking about television news. I say that very specifically because every industry evolves, and television news in India is also evolving. It's gone through various phases. It's come to a situation where India today has become an extremely important player on the world stage. And whatever is seen in India on television news is also viewed globally. In that context, while Rajdeep talked about commerce, content, and conscience, he missed out two elements which are very important for television news in India going forward in the future: credibility and country. And a nation of 1.4 billion people, going on to become 1.73 billion people by 2047, needs those two things to be kept in mind. Bhupendra has been on television for over 2 decades. He's a familiar name across the country. I've been a fan of some of his shows. And I want to ask him, as we go forward, should we talk about what ails Indian television, or should we talk about what the positive sides are about what we have accomplished in this short period? Well, good morning, and thanks for asking that question. Let me first begin. I think Anurag ji is not here, but it's his birthday today. Yes. So, happy birthday to Anurag and congratulations to the entire team of ENBA for consistently doing this for so long. I'll try and keep it in a blend of both English and Hindi, because I see काफी लोग यहाँ पर हिंदी मीडिया से भी जुड़े हुए जो आए हैं. तो आज तो देखिए, सबसे पहले रविवार का दिन है. रविवार का दिन हम लोग शुरू करते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा काम डाउन करें. और मैं देख रहा था कि जब हमारे दोनों सहयोगी पूर्व में राजदीप और बरखत दोनों ही हमारे सहयोगी रह चुके हैं, दोनों जब बोल रहे थे, उन दोनों लोगों ने आपके सामने क्या विषम समस्याएं हैं वो सब आज रविवार की ही सुबह जो है वो हमको बता के चले गए. तो मैं उन विषम समस्याओं से थोड़ा सा हट के जरा बात करना चाहूंगा कि जिंदगी में कुछ गुलजार अवसर भी होते हैं जी. तो कुछ अच्छी बातों की भी चर्चा क्यों न की जाए. क्राइसिस ऑफ टेलीविजन, यहाँ पर मैं मेरे ख्याल से मैं 7वें 8वें वर्ष आ रहा हूँ और हर साल क्राइसिस ऑफ टेलीविजन की हम चर्चा करके चले जाते हैं. मैं भी कुछ बातें कहता हूँ, बाकी लोग भी कई बार बड़े सवाल जवाब होते हैं. बहुत बार हमने भी कुछ अपनी ओर से कुछ हमने प्रयास किए. समटाइम्स यू सक्सीड, समटाइम्स यू डोंट. But one thing I will say with all honesty before this illustrious gathering, I think journalists are the biggest hypocrites, including me. Right? I'm no exception to this. So I find it very strange that someone comes and says that आज आप उन लोगों को अवार्ड देंगे जो कि समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं. अरे भाई, आप उसी संस्था में उन्हीं लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और आप उसी चेयर पे बैठते हैं. तो ये तो बड़ी विचित्र बात हुई कि आप बेचारे अनुराग जी को पूछ के जा रहे हैं कि भाई आप इन लोगों को क्यों अवार्ड दे रहे हैं और आप उन्हीं लोगों के साथ हर दिन आप काम करते हैं. तो इससे मैंने कहा हम सब लोग हिपोक्रेट्स हैं. None of us are perfect people. We have shades of grey. That aside, I want to come straight to the question that you're raising, that is there a crisis or not? Well, there is a crisis. But you know what? Every crisis also brings with it several opportunities. Right. I want to give you my own example. In 2020, when I moved away from Network 18, I also was bitten by this entrepreneurial bug, and I thought that TV news model was broken. हमने प्रयास किया कि हम एक नया मॉडल हम लेके आए. जब आप नया मॉडल लेके आते हैं तो उसमें क्या दिक्कत होती है? आपके जो सहयोगी होते हैं, जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, भाई पैसा तो सभी को चाहिए. Right. This is not a free medium. Everybody has to be paid. Where are you going to get the money from? Television newsrooms
unfortunately got taken over by a phrase which I use quite regularly on social media platforms, by news managers. News managers, unfortunately, instead of raising the level of journalism for various reasons, personal, professional, political, whatever, that level kept on coming down. And I think now that level has come, it has hit this rock bottom mechanism level where you have nowhere else to go but to look for newer avenues to make your mark, have your word, have your say, and engage yourself with newer audiences. So, what are we doing now? And that is where the opportunity and that's where the future really is. You know, I have my friend here, Gaurav Chaudhary, and I'd urge all of you to look at his platform, which he's launched with great fanfare. He's been running it with great success over the last 4 years, called Earshot. It's a premier podcasting platform in India. It's a great pleasure and privilege for me to be joining hands with them. We're doing some outstanding long format content जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि ये एग्जिस्ट भी करता है और लोग इसकी व्यूअरशिप भी हो सकती है। बट जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे हम लोग छोटे कदम उठा रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कंटेंट जो है, जो हम सोचते थे करीबन 2-3 वर्ष पहले कि एक इस तरीके का एक टीवी न्यूज कंटेंट होगा, 30 मिनट की साइकिल में आप 22 मिनट की कोई डॉक्यूमेंट्री करेंगे या कोई कहानी करेंगे, ये सब बदल चुका है। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज की बात है। ये सारी की सारी चीजें, चाहे आप उसको टेक्नोलॉजी कहिए या उसको कॉमर्स कहिए, मैं इस बात को भी बिल्कुल नहीं मानता कि पत्रकारों का कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं है। कॉमर्स से इससे लेना देना है चूंकि पत्रकारों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस मीडिया से, वो कॉमर्स के जरिए तो पूरी होंगी ना। या तो आप कह दीजिए, मैं इतने मीडिया इंस्टीट्यूट्स पे जाता हूं, वहां पे मैं सबको कहता हूं कि आप 5,000 रुपए में काम करोगे, इफ यू वांट मनी, then there is a certain business model which exists. Now, if you want to challenge that business model, well, then you got to be ready to, maybe make some compromises as far as that on money is concerned. So there is opportunity. Many new avenues are coming up. Technology will guide us, I think, in the right direction. I do not subscribe to this theory that, all is completely devastated, सब कुछ बर्बाद हो गया। भूपेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी एक्सचेंज फॉर मीडिया के इवेंट्स अटेंड कर रहा हूँ पिछले 5-6 साल से, और हर बार ये बात डिस्कस होती है। एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर एक जर्नलिस्ट, आप कहते हैं हम सब हिपोक्रेट हैं, मगर एक जर्नलिस्ट अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर जाता है, तो फिर उसका क्या हक बनता है दूसरों को लेक्चर देने का कि इंडस्ट्री में काफी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं? देखिए, चक्कर क्या है कि एक शब्द है व्हाट अबाउटरी। जी, आजकल क्या हो गया है कि आप किसी से भी कुछ भी पूछें कि भाई तुमने ये क्यों किया, वो कहेगा अरे साहब आपने तो, वो तब आपने 5 साल पहले तो आपने ऐसा किया था। किसी ने कहा, मतलब ये मैं जो कुछ कह रहा हूँ, क्योंकि सब साथी दोस्ती है हमारे यहाँ पर, किसी ने कहा कि साहब प्रधानमंत्री का जब इंटरव्यू होता है तो उनसे पूछा जाता है कि आपके बटुए में आप अपना क्या बटुआ रखते हैं, नहीं रखते हैं। तो लोगों ने कहा अच्छा आप ये पूछ रहे हैं, आप तो, लेकिन जब आप विपक्षी दल के नेता से बात करते तो आप कहते कि आप खाना क्या खाती हैं। अभी वो एक वीडियो में देख रहा था किसी चैनल पे बड़ा, कि वो राहुल गांधी से पूछा जा रहा था आपने समोसा खाया, आपने जलेबी खाई, इसका टेस्ट क्या है, उसका टेस्ट क्या है। आई थिंक ये सब जो बातें हैं ना, ये सब डाइवर्जनरी चीजें हैं। ये चूंकि सच्चाई यही है, इसलिए मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैंने इस हिपोक्रेसी शब्द का मैंने प्रयोग किया। इस हमाम में सब नंगे हैं, ये भी राजदीप जी का डायलॉग था। विक्रम यहाँ बैठे हुए हैं, राजदीप जी बहुत बार इस का प्रयोग करते थे when we were young journalists. But as we've grown up, I must be very honest with you, I have absolutely no hesitation to say this, that there is, at least in my life, I don't know any senior journalist with over 2 decades of experience behind them who at some stage would either not have buckled under pressure, who would not have taken a specific side, maybe sometimes for very personal reasons. Credibility है क्या? आप हर दिन आप कहानी करिए, आप हर दिन आप ट्वीट करिए, आप हर दिन पॉडकास्ट करिए, आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। क्या वो एंगेजमेंट, जिस क्रेडिबिलिटी शब्द को जिस प्रकार से हम परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं, द वे वी ट्राइंग टू डिफाइन इट, डज इट रियली qualify, does it really quantify? In that sense, I have my serious doubts today. Kyunki if I say that I am the most credible person, there'll be 10 people here who will point out that who the hell am I, to sit on this high pedestal of credibility, because I may have done maybe 5 or 7 or different things, for some reason I don't know. But मेरे भी बड़े मीम्स चलते रहते हैं कि मैं कोई हेट ब्रिगेड का कुछ, मैं भी पार्टिसिपेंट हूँ, हालांकि मैंने अपने जीवन में मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, बट हो सकता है किया, maybe I do not know। इसलिए मुझे कोई हक नहीं बनता है, और मुझे लगता है 99%
पत्रकारों को हक नहीं है आज की डेट में कि वो दूसरे की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करें, क्योंकि आप एक उंगली सामने वाले की तरफ उठाएंगे, चार उंगली आपकी तरफ उठेंगी। इसलिए ये जो डिबेट है ना, ये बड़ा इसको इसको मैं इतना संजीदा नहीं मानता। भूपेंद्र जी, मगर एक तरीके से आप देखिए, यू गाइज आर सो क्लोज टू major political leaders. You can access any political party. And in that situation, there is the possibility of accepting state patronage. किसी जर्नलिस्ट को पद्मश्री, पद्म भूषण वगैरह वगैरह मिल जाता है, तो आप क्रेडिबिलिटी को, एथिक्स को अगर सामने नहीं रखेंगे, तो ये आपका रुझान उनकी तरफ नेचुरली हो जाएगा। कुछ लोग तो इवन राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। वो जर्नलिस्ट है या पॉलिटिशियन है, इसमें फासला होना चाहिए। अगर एक दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो हमारे मुल्क में कई बार हम लोग कोशिश करते हैं कि ये चैनल हम देखें क्योंकि ये बैलेंस्ड व्यू देगा, ये दोनों पक्षों के बारे में बोलेगा। कई चैनल ने जो एक तरफा बातें करते हैं। तो क्रेडिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस बिजनेस, अदरवाइज वी विल नॉट हैव एनीथिंग। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक हमारे पूर्व साथी एक और थे। आप समझे कि आज रविवार है, मान लीजिए फ्राइडे तक वो 8-9 बजे का कोई भी whatever show he was doing on a prominent channel till Friday. Monday he was joining a political party. Tuesday he became a key leader of that political party. Wednesday he became a candidate of that political party. Cut to a year down the line, the guy's back to doing journalism. Yes. Now, is he a journalist? Is he a politician? Is he an anchor? Is he an activist? आप क्या परिभाषित कैसे करेंगे? मैं क्रेडिबिलिटी शब्द को मैं इसलिए चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि साहब अगर क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ये आप व्यूअर के ऊपर छोड़ दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि साहब कॉन्फर्मेशन बायस है, देयर इज अ कॉन्फर्मेशन बायस। व्यूअर्स वुड सी व्हाट दे वांट टू सी। इफ यू डोंट सी, मे बी इट्स एन इजी एग्जिट रूट फॉर ऑल ऑफ अस ना। आई कैन टर्न अराउंड एंड से दैट इफ यू डोंट लाइक मी और इफ यू डोंट लाइक whoever, don't watch it, switch it off. Who's forcing you to watch it? But then there is a certain, I would argue, there's a certain social responsibility, if not a moral responsibility, of at least informing the person. अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आज आपके पास इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने जरिए हैं, मैकेनिज्म्स हैं कि यू कैन फाइंड आउट कि ये आदमी सच बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। क्रेडिबिलिटी, फैक्ट चेकर्स की से ज्यादा किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो फैक्ट चेकर की ही क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में है, क्योंकि वो भी, उनका भी ध्रुवीकरण हो गया है। एक फैक्ट चेकर एक काइंड ऑफ कमेंट्स को फैक्ट चेक करेगा, एक फैक्ट चेकर एक काइंड ऑफ कमेंट्स को फैक्ट चेक करेगा। जब उसकी ही क्रेडिबिलिटी को आप परिभाषित नहीं कर सकते, रेखांकित नहीं कर सकते, तो कैसे एक एंकर की क्रेडिबिलिटी को आप करेंगे? आप एक और सवाल है, आप एक सिचुएशन में है जो आपके सामने है, आप लोकेशन पे हैं, आपके सामने कैमरा है, सिचुएशन कैन बी एक्सप्लोसिव, राइट्स हो सकते हैं। अब आप अगर अपने पे नियंत्रण नहीं रखेंगे और ऐसी बात कहेंगे जिससे एक और प्रदेश में कहीं दूर कोई दर्शक उत्तेजित हो जाता है, झगड़े में आ जाता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है हमारे जर्नलिज्म के ऊपर। मगर मैंने देखा कई जर्नलिस्ट हमारे बिल्कुल फेंक जाते हैं, टीवी पे ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे कि वो एक पोजीशन ले रहे हैं एक सिचुएशन में। और कई बार उनको ये चीजें नहीं दर्शानी चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का रिएक्शन टाइम भी होता है। कहीं पर कुछ हो, उसके लिए वहां व्यवस्था करने के लिए वहां के जो लोग हैं उनको वो काम करने के लिए पहुंचना पड़ता है, पहले पहुंच गए हैं। फॉर ब्रेकिंग न्यूज यू कैन नॉट समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज ऑन द लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। आप लॉ एंड ऑर्डर की और आप राइट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। आई एम श्योर हमारे बड़े साथी यहाँ पर जो बैठे हैं, एक वीडियो भी मैंने देखा, मैं किसी का मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, प्लीज कहीं आप समझे कि कुछ और कह रहा हूँ। वही दिल्ली में हाल में देखिए बाढ़ की स्थिति थी जी, तो मैंने एक वीडियो देखा कि सड़क पे ट्रैफिक चल रहा था, सब कुछ ठीक था, और कोने में मेट्रो स्टेशन के नीचे थोड़ा सा एक जगह पानी लगा हुआ था जी। अब क्या है कि एक रिपोर्टर वो सड़क को पूरा इग्नोर करके उस पानी के अंदर कूद गया। उससे कैमरामैन को उसने बोला कि भाई दिखाओ कितना एकदम अफरा तफरी का माहौल है बिल्कुल। और वो वीडियो जो है वो लोगों ने चलाया। अब क्या हुआ, चूंकि वो वीडियो चला, किसी और भले शख्स ने जो है, जो बाकी सड़क पर ट्रैफिक चल रहा था, उससे उसका वीडियो दिखा दे कि भाई ये क्या है। अगर आप नाले में कूद जाओगे और कहोगे कि यार नाले में पानी है, नाले में बाढ़ है, राइट, इसका जिम्मेदार साहब कौन है?
हम क्या इसको मतलब आप कामनेस की बात कर रहे हैं, आप तो एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इन अ वेरी ऑर्डिनरी सिचुएशन, व्हेन यू आर स्टक विद अ प्रॉब्लम लाइक दिस, where is the where is the question of trying to hold on to your calmness, so to say? क्या होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूं। कई साल पहले हरियाणा में दंगे की स्थिति हो गई थी। आई वॉज डूइंग अ टेलीविजन प्रोग्राम, सडनली आई somebody whispered in my ears that, boss, you're asking for the resignation of a very senior person. That's not on. I said, Harry, but and it's not that I'm the only person who's asking for, you ask for political accountability. साहब इतने लोग मर गए, इतना बर्बादी का जो माहौल बन गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? नहीं नहीं नहीं, बड़ी चिंताजनक विषय है। आप एक काम करिए, आप उस सरकार के कुछ अच्छे काम के बारे में बोल दीजिए। अब एक और रेप की स्थिति है, एक और राइट की स्थिति है, और अगर आपके कान में कोई ये बोले, और ये वरिष्ठ व्यक्ति अगर कोई ऐसा बोले, तो आप सोचिए आप क्या करेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं तो एक ऐसे समय में भी रह चुका हूं, और सब चूंकि यहाँ पर हमारे पूर्व साथी हैं, हमारे ही पूर्व साथी ने मुझको मना कर दिया कि तुमने जिस व्यक्ति को स्टूडियो में बुलाया उसका इंटरव्यू मत करो, चूंकि वो व्यक्ति बैठा हुआ और खुद बड़ा प्रोमिनेंट व्यक्ति था, चूंकि कला का नाराज हो जाएंगे। और आज बैठ के हम यहाँ पे हम क्रेडिबिलिटी की और इन सब बातों की बात करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई से लेट्स नॉट बीट अबाउट द बुश। ये कामनेस, क्रेडिबिलिटी, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। सच्चाई ये है कि अगर 100 टेलीविजन एंकर हैं, 100 टेलीविजन एंकर में से 95 टेलीविजन एंकर्स वो हैं जो किसी और की बात आगे लेके चल रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं, आप उसमें आप सवाल आप उठा सकते हैं कि साहब आपको लेना चाहिए किसी से ऑर्डर, नहीं लेना चाहिए, लोगे तो क्या परिणाम है, नहीं लोगे तो क्या परिणाम है। इसलिए मैं कहता हूं कि मच बेटर दैट वी लुक फॉर वेज आउट, वी लुक फॉर सॉल्यूशंस। अगर लॉन्ग फॉर्मेट, मैं कहता हूं कि सबसे बढ़िया जर्नलिज्म पता है कहां हो रहा है? कॉमेडी में हो रहा है। Satirists, according to me today, stand-up comedians are doing best journalism. आप जाए यहाँ मॉल ऑफ इंडिया में, यहाँ पे वीकेंड्स पे कभी कोई कार्यक्रम होते हैं, it's fantastic. Would I not want to see that on television? Why not? I'd love to, but I know any channel which attempts to do that will be shut down. I have a difficult question for you. I have a difficult question for you, Mr. Chaubey. एक बहुत प्रख्यात महिला है बॉलीवुड में, बॉलीवुड या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, आपने उनका इंटरव्यू लिया। सनी लियोन, सीधे बोलिए, उनकी बात कर रहे हैं। वो तो मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो अब आप बताइए, जो उसका रिएक्शन हुआ, उसका आपने कभी सोचा कि मैंने कोई गलती करी या मेरे से कुछ ज्यादती हुई, मैंने कोई गलत सवाल पूछा, आपको लगा कभी? मैंने उनसे ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जो उनसे या पहले न पूछा गया हो, या मैं वो सवाल शायद कुछ और संजीदगी से, भले ही स्टाइल अलग अलग हो सकता है। मैं आपको उससे भी मैं किस्सा बता दूं। Interesting that you've raised this question, because Gaurav and I, for earshot, we want to do this podcast with her, right? Where I want her to question me. Okay. The same question that you have on your mind. Okay. अब मैंने मेरे ख्याल 2016-17 में हमने इंटरव्यू किया था। अब देखिए वहां से हम कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन ये है कि सनी जी ने उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर उसी इंटरव्यू के चलते एक डॉक्यूमेंट्री बनवा ली। उसी इंटरव्यू के चलते अभी हाल में उन्होंने कोई फिल्म कोई उनकी आई है, मैंने उनका कोई सिनेमा नहीं देखा, लेकिन अभी हाल में उनकी कोई फिल्म आई है जिसमें उनका ये ऐसा दावा है कि उनको वो रोल इसलिए दिया गया, नॉट बिकॉज ऑफ एक्टिंग एबिलिटीज, बट because the director and producer saw her in that interview with me. Okay. So I am very happy if I've had such a deep impact, contribution, and contribution in someone's life. I'm very happy with that. But वहां पे वो जो इंटरव्यू था ना, बड़ी मजेदार घटना थी जी। एक हम और हमारे एक और साथी थे, हम ही दोनों लोगों ने किया था। क्या हुआ कि सनी जी वहां पे इंटरव्यू करने के लिए आई 7 घंटा लेट। सो आप सोचिए, आप बैठे हैं यहाँ पर, महबूब स्टूडियो में इंटरव्यू हो रहा था, इट वाज एन अनकंफर्टेबल चेयर, एंड दैट वाज अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, कि जब आप, नो मैटर हु यू आर, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग लाइटली बिफोर अ टेलीविजन कैमरा। बिकॉज क्या हुआ कि मैं सुबह की फ्लाइट लेके मैं गया था, थक गया था, मैं थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा था, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो आई केप्ट ऑन चेंजिंग माय पोजीशन ऑन द चेयर। मतलब मैं ऐसे बैठूं, लुक लगा कि आई वाज फीलिंग uneasy or unnerved in her presence. So it's not as maybe maybe you could well argue that maybe the tonality of some of the questions could have been different. Right. I would accept that. Right. I would acknowledge that. Yeah. But were those questions wrong in any way whatsoever? I mean, to the best of my you memory. didn't feel they were misogynist in any way?
No, I think that's why I said that, we're all hypocrites in some way. Uh, if I ask, if I raise this question to someone that if you were to restart your life, would you like to be a porn star again? You know, and I think that was one of the questions which I had raised, which triggered a lot of holier than thou kind of conversations. She gave me a good answer to the best of my memory, but a lot of people thought that there was misogyny, that I'm being judgmental. But is that an unfair question to raise? आज की तारीख में आप देखिए क्या है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से सपोजिटली निपटने के लिए एक पूर्व, या शायद अभी भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उदय मुरकर जी ने, उन्होंने तो पूरा सेव इंडिया फाउंडेशन ही बना डाला। Correct. और आला अधिकारी, सेंसर बोर्ड, टॉप प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट आर ऑल अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। We are almost over with our fireside chat. One last question. There are many people here who are just starting out. They have next 30, 40 years of their career ahead of them. And as somebody who spent over 20 years here, what would you like to tell them? I think they should shun cynicism. Please don't listen to journalists with 20, 25 years ahead of them, because they'll tell you what is wrong. And I'm here to tell you, with 20 years behind me, that all is not wrong. It's not as if things are broken. When I joined television, I would walk into a press conference, and I remember print journalists at that time, doyens of print journalism would lampoon us, and they say, "Oh, these TV walas are here. Why are you, troubling us?" I anticipate that something similar is happening to the media ecosystem now, where with the advent of these podcasters and vodcasters, and long format content, linear content creators, I now think that the opportunity very, very clearly is in these new age mediums. The more you engage with these new age mediums, there may be business challenges, there may be monetary challenges, regulatory challenges. वो सब रहेगा, but I certainly believe that all is most certainly not lost with the business of news media. Only the platforms have changed. Now you got to take that bet. You got to take your own decision in terms of which is that platform which works for you the most. Great to hear a positive note this morning. And thank you very much, Mr. Chaubey. Thank you, E4M, and thank you, Exchange for Media. Thank you, Bhupen.